Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter Consignment Accounts, Chapter 2 under Unit 2 for Intermediate Second Year Students for Telangana State Board of Intermediate Education. Let us discuss long problems. Page number 80, question number 4. Shivabhiram of Sikandrabad consigned to Anil of Vijayawada 100 boxes of medicines at rupees 500 each. Shivabhiram paid freight and insurance amounting to rupees 2500. So पहले who is sending the goods? Shivabhiram, he is from Sikandrabad and he is sending the goods to Anil, he is from Vijayawada. Consigned का मतलब सामान भेजना. तो who is consigner? Shivabhiram. So here is the working notes. Consigner Shivabhiram, consignee Anil, and what is consignment? Transfer of goods from consigner to consignee for the purpose of sale is called as consignment, and the place of consignment will be taken as the place of consignee who is from Vijayawada. So consignment will be recorded as Vijayawada consignment, and goods sent on consignment value is he sent 100 boxes of medicines at 500 each. तो यहाँ पे आप जो सामान भेज रहे वो 100 boxes of medicines, दवाइयों के 100 boxes भेज रहे और एक एक बॉक्स 500 रुपए का है. So 100 into 500 it becomes 50,000. Next, it is given as Shivabhiram paid freight and insurance amounting to 2500. Who is Shivabhiram? He is consigner. So consigner expenses amounted to 2500. Next, Anil sent rupees 20,000 as advance. तो यहाँ पे consignee क्या कर रहे? Consigner को advance दे रहे. इससे पहले के प्रॉब्लम में हम जो एडवांस डिस्कस करें वहाँ पे एडवांस बिल की शक्ल में दिए थे. क्वेश्चन नंबर 2 में जो बिल की शक्ल में मिला था अपने को एडवांस, सुमलता के पास से एडवांस आया था, हरी को आया था, बिल की शक्ल में आया था, बट इस बार एडवांस डायरेक्ट पैसों में दे रहे. तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स जो एडवांस लिखेंगे आप, कितना दे रहे एडवांस? 20,000 दे रहे. पेमेंट एज एन एडवांस पेमेंट अगेंस्ट कंसाइनमेंट. तो हु विल गिव एडवांस? कंसाइनी विल पे एडवांस टू कंसाइनर एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट कंसाइनमेंट रिसीव. तो जो सामान कंसाइनर के पास से कंसाइनी रिसीव कर रहे वो सामान की सिक्योरिटी के तौर पे कंसाइनी कंसाइनर को एडवांस पे करते. सो क्वेश्चन नंबर 2 में बिल की शक्ल में पे करे थे, यहाँ पे सीधा सीधा पैसे पे कर दे रहे. नेक्स्ट, शिवाभिराम रिसीव्ड अकाउंट सेल्स फ्रॉम अनिल. अकाउंट का मतलब हिसाब, सेल्स का मतलब बेचना. अकाउंट सेल्स का मतलब बेचे सो हिसाब किताब. हु विल बी सेलिंग द गुड्स? कंसाइनी. तो ये बेचे सो हिसाब किताब कौन बनाएंगे? कंसाइनी बनाएंगे. बना के किसको देंगे? कंसाइनर को देंगे. सो शिवाभिराम रिसीव्ड अकाउंट सेल्स फ्रॉम अनिल कंटेनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. तो उसमें क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस सेल प्रोसीड्स आर 74,000. मतलब जो सामान बेच रहे वो 74,000 में बेच रहे. सो सेल्स वैल्यू विल बी टेकन एज 74,000. ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस 2,500. तो कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस है वो 2,500 है. नेक्स्ट, कमीशन इज चार्ज एट 10% ऑन ग्रॉस प्रोसीड्स. तो आप जो सामान बेच रहे उस पर 10% कमीशन ले रहे. 74,000 का 10% क्या आता? इट विल बी 7,400. इसका कैलकुलेशन है 74,000 इंटू 10/100, 0,000 गेट्स कैंसल्ड. 7,400 into 1 it will be 7,400 divided by 1 again it will be 7,400, or directly reducing 1 0 from 7,400 the value will be 7,400. Directly reducing 1 0 from 74,000 the value will be 7,400. Now we have completed the working notes. Now we are required to prepare necessary ledger accounts in books of consignor and consignee. तो शिवाभिराम और अनिल दोनों के बुक्स में अपने को सिर्फ लेडजर अकाउंट्स बनाना है. So first we'll be preparing ledger accounts in books of consignor. Who is consignor here? Shivabhiram. So the heading will be ledger accounts in books of Shivabhiram. The first account that he will be preparing is of consignment account. तो consignment कहाँ पे हो रहा है? ये विजयवाड़ा में हो रहा है. The first account will be Vijayawada consignment account and the format will be date particulars JF general folio amount rupees, date particulars JF general folio amount rupees, and the name of the account is Vijayawada account. Towards extreme left will be writing DR debit and towards extreme right will be writing CR credit. इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो सामान भेज रहे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कितने का सामान भेज रहे? 50,000 का सामान भेज रहे. इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000 रुपीज. नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के बाद वर्किंग नोट्स क्या है अपनी? कंसाइनर एक्सपेंसेस 2,500 विच ही पेड टुवर्ड्स फ्राइट एंड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 2,500. सो कंसाइनर एक्सपेंसेस, ये बुक्स खुद कंसाइनर के है तो कंसाइनर एक्सपेंसेस भी खुद कंसाइनर पे कर रहे. सो ये कंसाइनर की जेब से पैसा जा रहा. इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैंक अकाउंट. ब्रैकेट में लिखेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस 2,500. आफ्टर कंसाइनर एक्सपेंसेस वी हैव द वर्किंग नोट्स कंसाइनी एक्सपेंसेस. तो कंसाइनी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस के लिए कितना पे कर रहे हैं?
2500. Again consignee expenses will be recorded on debit side of विजयवाड़ा कंसाइनमेंट अकाउंट. इस बार पैसा कंसाइनी की जेब से जा रहा तो वो बंदे का नाम लिखेंगे. टू अनिल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस 2500. कल से अनिल का काम क्या है? ही विल बी सेलिंग दी गुड्स. तो बेचे तो पैसे आ रहे, अपने को आ रहे या अनिल को आ रहे? अनिल को आ रहे. सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन हिज नेम एज बाय अनिल अकाउंट. ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्स. वो बंदा कितने में बेच रहा? ग्रॉस सेल प्रोसीड्स आर गिवन एज 74,000. तो सेल्स की वैल्यू 74,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अनिल अकाउंट सेल्स 74,000. अब ये 74,000 पे अनिल को क्या मिलना है? 10% कमीशन मिलना है, विच वॉज कैलकुलेटेड हियर एज 74,000 इंटू 10/100 विच वर्कड आउट टू बी 7,400. तो भी अनिल को कमीशन देना है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू अनिल अकाउंट. ब्रैकेट में कमीशन लिखेंगे एंड द अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज 7,400. अब आप क्या करेंगे? इसका बैलेंसिंग करेंगे. कैसा करेंगे बैलेंसिंग? फर्स्ट विल बी डूइंग द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ विजयवाड़ा कंसाइनमेंट अकाउंट, देन विल बी डूइंग द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ विजयवाड़ा कंसाइनमेंट अकाउंट. द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ विजयवाड़ा कंसाइनमेंट अकाउंट इज 50 + 7 57 + 2 59 + 1 60 60 + 2 50 + 7 57 57 + 2 59 60 62,400. तो यहाँ पे डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा वो 62,400 आ रहा और क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा वो 74,000 आ रहा. तो कौन सा टोटल ज़्यादा है? 74,000 ज़्यादा है. सो 74,000 क्रेडिट साइड का टोटल है. दिस इज द टोटल ऑन क्रेडिट साइड, whereas the total on debit side is 57 59 60 62,400. तो डेबिट का टोटल है 62,400. सो हियर द टोटल इज 62,400. ये डेबिट का टोटल है. तो दोनों में कौन सा टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है. सो 74,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ consignment account. 74,000 will be recorded on debit side of consignment account and 74,000 will be recorded on credit side of consignment account. Now we'll be subtracting 62,400 from 74,000. So 74 में से 7 - 6 1 4 - 2 2. तो 12,000 बचते हैं. 12,000 में से 400 रुपये निकाल दीजिए आप, 11,600 रुपये बचते. You will be left out with 11,600. So this is profit on consignment which is recorded here as टू प्रॉफिट एंड लॉस. ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट और अमाउंट लिखेंगे आप 11,600. यहाँ पे पहले आपको डेबिट का टोटल लिखना है, बाद में क्रेडिट का टोटल लिखना है. जो हाईएस्ट अमाउंट रहता है उसमें से स्मॉल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द बैलेंसिंग फॉर कंसाइनमेंट अकाउंट. सो वी हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹11,600. नेक्स्ट, आफ्टर प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट, नाउ विल बी प्रिपेयरिंग कंसाइनी अकाउंट. Who is consignee in this problem? Anil. So next we'll be preparing Anil account, for which the format is date particulars GF general folio amount rupees, date particulars GF general folio amount rupees. Name of the account is Anil account and towards extreme left we'll be writing DR debit and towards extreme right we'll be writing CR credit. अब अनिल अकाउंट कैसा बनाते हम? विजयवाड़ा कंसाइनमेंट के अकाउंट में जितने बार अनिल का नाम लिखे, अनिल के अकाउंट में उतने बार विजयवाड़ा कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे. इधर डेबिट में लिखा हुआ है तो उस तरफ क्रेडिट में लिखेंगे. बट उससे पहले क्या करेंगे? हम एडवांस का अमाउंट लिखेंगे. तो ये प्रॉब्लम में देखिए, हम एडवांस जो दे रहे वो सीधा सीधा पैसे दे रहे. वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ए बिल. द कंसाइनी इज नॉट एक्सेप्टिंग ए बिल. तो अगर बिल एक्सेप्ट करते थे तो हम बाय बिल्स रिसीवेबल लिखे थे. इफ यू रिमेंबर अवर प्रीवियस प्रॉब्लम, अगर हम वहाँ पे बिल एक्सेप्ट करें तब यहाँ पे हम बाय बिल्स रिसीवेबल लिखे थे. बट इस बार हम बिल नहीं ले रहे, सीधा पैसे ले रहे. सो दिस विल बी रिकॉर्डेड एज बाय बैंक अकाउंट. तो इस तरफ लिखेंगे आप बाय बैंक अकाउंट. तो अपने को एडवांस जो आ रहा अनिल के पास से वो क्या आ रहा? पैसे आ रहे. सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाय बैंक अकाउंट. कितने पैसे आ रहे? 20,000 रुपीज़ एडवांस के तौर पे आ रहे. तो यहाँ पे एडवांस के लिए कितना पैसा आ रहा? 20,000 आ रहा. सो इट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज बाय बैंक अकाउंट 20,000. अब इसके बाद क्या करेंगे आप? अनिल जिधर जिधर विजयवाड़ा कंसाइनमेंट के अकाउंट में अनिल का नाम लिखे, अनिल के अकाउंट में ऑपोजिट साइड विजयवाड़ा कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे. First, in Vijayawada consignment account, we have recorded the name of Anil on debit side. So this time, Anil's account will be writing the name of Vijayawada consignment account on credit side. तो ये 2,500 पहले लिखेंगे आप एडवांस के बाद. बाई विजयवाड़ा कंसाइनमेंट अकाउंट 2,500, ये कंसाइनी एक्सपेंसेस है. इसके बाद क्या करे थे हम? बाई अनिल अकाउंट सेल 74,000 लिखे थे. विजयवाड़ा कंसाइनमेंट के अकाउंट में अनिल का नाम लिखे. अब अनिल के अकाउंट में विजयवाड़ा कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे. इस तरफ क्रेडिट में लिखे, इस तरफ डेबिट में लिखेंगे. टू विजयवाड़ा कंसाइनमेंट अकाउंट 74,000, ये सेल्स का अमाउंट है. फिर इसके बाद क्या करे थे हम? टू अनिल अकाउंट कमीशन 7,400 लिखे थे.
विजयवाड़ा कंसाइनमेंट के अकाउंट में टू अनिल अकाउंट का नाम लिखे थे, अब अनिल अकाउंट में विजयवाड़ा कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे। इस तरफ डेबिट में लिखा हुआ है, इस तरफ क्रेडिट में लिखेंगे बाई विजयवाड़ा कंसाइनमेंट अकाउंट 7400। अब इसकी बैलेंसिंग कैसा करेंगे आप? फर्स्ट विल बी डूइंग द टोटल ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। आप क्या करेंगे? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंसिंग करेंगे, तो टोटल करेंगे। द टोटल ऑन डेबिट साइड इज 74,000, ये सेल्स का पैसा है। अब आप क्या करेंगे? सेल्स के पैसों में से हम अपना एडवांस डिडक्ट करेंगे, एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे और अपना कमीशन डिडक्ट करेंगे। तो कंसाइनी अनिल जो कंसाइनर शिवाबीराम को पैसे देना है वो कितने देना है? 74,000 देना है। बट शिवाबीराम कंसाइनर के पास से कंसाइनी अनिल को जो पैसे आना है एडवांस के 20,000 जो ऑलरेडी पे कर दिए ये आना है, 2,500 ये कंसाइनी एक्सपेंसेस ये आना है और 7,400 कंसाइनी का कमीशन ये आना है। सो 20 + 7 27 + 2 29 29,900 आ रहा। तो कंसाइनर को जो देना है वो 74,000 देना है, कंसाइनी को कंसाइनर के पास से जो आना है वो 29,900 आना है। तो अब हम क्या करेंगे? ये 29,900 को 74,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने पैसे बच रहे? 44,100 बच रहे। तो पहले 29,000 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 20,000 सब्ट्रैक्ट करिए, 54,000 बचते। फिर उसमें से 9,000 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 4,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 50 बचते, फिर 5। सो 50 - 5 45 बचते। 45 में से 900 माइनस करिए, 44,100 बचते। अब ये 44,100 अपने को किससे आना है? कंसाइनी के पास से आना है। ये कैलकुलेशन देखिए, 74,000 में से आपको 29,900 निकालना है। 74,000 ये सेल्स अमाउंट था, इसमें से 29,900 आना है। सो द कैलकुलेशन विल बी 0 - 0 0 0 10 - 9 100। अब इस तरफ 13 - 9 इट विल बी 14। अब ये 6 - 2 अगेन इट विल बी 4। तो अपने को 44,100 रुपीज़ कंसाइनी के पास से आना है। तो अब हर प्रॉब्लम, अगर अपने को प्रॉब्लम में ही सेंट ए बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस या ही सेंट द अमाउंट बैलेंस अमाउंट ऐसा कुछ देता तो हम बाई बैंक अकाउंट लिखते थे, एज वी यूज टू रिकॉर्ड इन अर्लियर प्रॉब्लम्स। बट इस बार अपने को ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करा कि हम कंसाइनी जो है ना कंसाइनर को सेटलमेंट कर दे रहे बोल के स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज बाई बैंक अकाउंट वी आर राइटिंग हियर इट एज by balance carried down 44,100, the same will be brought down on opposite side as to balance brought down 44,100। इसका क्या मतलब आता? कंसाइनी के पास से कंसाइनर को अभी फाइनल सेटलमेंट नहीं मिला। अगर फाइनल सेटलमेंट आ जाता था तो हम यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट लिखते थे। इससे पहले के प्रॉब्लम में चेक करिए आप, हियर इट इज रिकॉर्डेड एज बाई बैंक। अगर पेमेंट कर देते तो बाई बैंक लिखते थे, बट एज कंसाइनी हैज नॉट मेड द पेमेंट, क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है, इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई बैलेंस कैरी डाउन। इसका क्या मतलब आता? अभी भी कंसाइनी अनिल के पास से कंसाइनर शिवाबीराम को 44,100 रुपीज़ आना है। नेक्स्ट, आफ्टर प्रिपेयरिंग कंसाइनी अकाउंट विल बी प्रिपेयरिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। द फॉर्मेट फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी द सेम, डेट पर्टिकुलर्स JF जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स JF जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज़, नेम ऑफ द अकाउंट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट विल बी राइटिंग DR डेबिट, टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट विल बी राइटिंग CR क्रेडिट। हाउ डू वी प्रिपेयर दिस अकाउंट? विजयवाड़ा कंसाइनमेंट के अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का नाम लिखे थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के अकाउंट में विजयवाड़ा कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे। इस तरफ डेबिट में लिखा हुआ है, इस तरफ क्रेडिट में लिखेंगे, एंड द एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट 50,000 एंड विल बी बैलेंसिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000 ऑन डेबिट साइड, 50,000 ऑन क्रेडिट साइड। वी हैव कंप्लीटेड प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिए, कंसाइनी अकाउंट बना दिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिए। Now we have to prepare ledger accounts in books of consignee. Who is consignee? Anil. अब heading will be ledger account in books of Anil. अब अनिल के बुक्स में किसका अकाउंट बनाएंगे हम? कंसाइनर शिवाबीराम का अकाउंट बनाएंगे। द फॉर्मेट विल बी द सेम, डेट पर्टिकुलर JF जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर JF जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट विल बी राइटिंग DR डेबिट एंड टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट विल बी राइटिंग CR क्रेडिट। कंसाइनर को जो एडवांस दिए थे, कंसाइनर अपने बुक्स में पैसा आ रहा बोल के बाई बैंक 20,000 लिख लिए थे। फिर कंसाइनी क्या करेंगे? अपने पास से पैसा जा रहा बोल के टू बैंक 20,000 एडवांस लिखेंगे। हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैंक अकाउंट 20,000। अगर बिल रहती थी तो इस तरफ बाई बिल्स रिसीवेबल लिखते थे और इस तरफ टू बिल्स पेएबल लिखते थे, बट हम बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सीधा सीधा पैसे दे दे रहे। सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैंक हियर एंड बाई बैंक इन कंसाइनीज अकाउंट अंडर कंसाइनर बुक्स। अब ये एडवांस देने के बाद कंसाइनी एक्सपेंसेस लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? कंसाइनी के जेब से पैसा जा रहा, कितना जा रहा?
2500 जा रहा, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैंक अकाउंट 2500। फिर कंजाइनी जो सेल कर रहे 74,000 में सेल कर रहे, तो कंजाइनी को पैसा आ रहा, कितना आ रहा 74,000 आ रहा, इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई बैंक अकाउंट। अब ये बेचे सो पैसों पे कंजाइनी को क्या मिलना है, कमीशन मिलना है, विच विल बी रिकॉर्डेड एज टू कमीशन अकाउंट 7400। अब कंजाइनी क्या करेंगे, 74,000 जो सेल अमाउंट है उसमें से अपना एडवांस 20,000 डिडक्ट करेंगे, 2,500 अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे, 7,400 अपना कमीशन डिडक्ट करेंगे, बचे सो 44,100 कंजाइनर को रेमिट कर देंगे। बट ये प्रॉब्लम में कुछ भी डिटेल्स दिया हुआ नहीं है कि ही सेंड द बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस, ही सेटल्ड हिज अकाउंट, इसीलिए हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज टू बैंक, अगर सेटल करते थे तो हम टू बैंक लिखते थे, जैसा कि सेकंड अकाउंट में अगर सेटल कर रहे तो बाई बैंक लिखते थे, उसी तरह यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे। बट एज द अकाउंट इज नॉट बीइंग सेटल्ड बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर, हियर आल्सो वी हैव रिकॉर्डेड इट एज बैलेंस कैरी डाउन, हियर आल्सो विल बी राइटिंग इट एज बैलेंस कैरी डाउन। वहाँ पे क्रेडिट में कैरी डाउन करे थे, यहाँ पे डेबिट में कैरी डाउन करेंगे। वहाँ पे क्रेडिट का जो कैरी डाउन हुआ था उसका ब्रॉट डाउन ऑपोजिट साइड डेबिट में हुआ था, इस तरफ डेबिट में जो कैरी डाउन हो रहा है इसका ब्रॉट डाउन ऑपोजिट साइड क्रेडिट में होगा, विच इज रिकॉर्डेड हियर एज टू बैलेंस कैरी डाउन 44,100, द सेम विल बी रिकॉर्डेड ऑन ऑपोजिट साइड एज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,100। तो समझ में क्या आया, कंसाइनी के पास से अगर कंसाइनर को एडवांस आना है तो वो दो सूरतों में आता, उसकी दो शक्लें हैं, एक या तो हम बिल एक्सेप्ट करेंगे या तो पैसे एक्सेप्ट करेंगे। इफ वी आर एक्सेप्टिंग बिल इन द फॉर्म ऑफ एडवांस, हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई बिल्स रिसीवेबल एंड हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बिल्स पेएबल। अगर आप बिल एक्सेप्ट कर रहे तो, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग बिल then you will be paying the amount there, instead of writing it as by bills receivable we will be writing it as by bank, here also instead of writing it as to bills payable we will be writing it as to bank. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts, and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.